Hello dear friends, I have come up with my notes on polynomials. This is chapter 2 of class 10th in NCERT book. Now look here, before we learn polynomials, we should understand what is algebraic expression. Now look here, I have given examples. 2x, 3y, minus 1 by 2z, they are the algebraic expressions. They are the algebraic expressions. अब इसके अंदर है क्या क्या? 2 is constant. It never changes. Constant never changes. रात को भी 2 रहता है, सुबह भी 2 रहता है. ना तो हवाई जहाज में इसकी वैल्यू बदलती है, ना जमीन के नीचे बदलती है. दिन रात यही रहता है, ऑलवेज यही रहता है. That is why it is called constant. It never changes. Whereas x is a variable, y is a variable, z is a variable. These are variables. Now 2, 3 and minus 1 by 2, 2, 3 and minus 1 by 2, they are constants and these are variables. No, more examples are there. 2x plus 5. अब आप यहां पे देखो x की पावर 1 है. पावर एक्सपोनेंट को पावर बोलते हैं या पावर को एक्सपोनेंट बोल देते हैं. यहां पे x की पावर 2 है, तो इसको एक्सपोनेंट बोल देते हैं. तो यहां पे x की पावर 3 है, यहां x की पावर 4 है. अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के साथ में कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, आप कह सकते हो सर x लगा हुआ है. अगर x लगा हुआ है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि x पर 0 is 1, तो 5 into 1 will be 5. Similarly, what we find, या तो पावर 0 होती है, या 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है, so on. These are whole numbers. These are whole numbers. So what is the definition of a polynomial? कहता है when exponent of a variable in any algebraic expression is a whole number. अब देखिए सारे whole numbers हैं, 1, 2, 3, 4, 0, they are whole numbers. So it is called polynomial. When exponent or power of a variable is a whole number, then it is called polynomial. So this is the definition of polynomial. Now we will go further. Now next notice this types of polynomials. Now these are linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. Polynomial of degree 1 is called linear, polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. This is of the shape ax square plus bx plus c. And a polynomial of degree 3 is called cubic. Example is there, x cube plus 5x square plus 6x plus 7. So these are the various types of polynomials. Now what are zeros of the polynomial? Look here, 0 of a polynomial is a number for which value of that polynomial is 0. अब देखिए हमें चेक करना है क्या 2 और 3 जीरोस हैं या नहीं है इस पॉलिनोमियल की. तीनों को चेक करेंगे. x की जगह पहले 2 लगाओ. देखो x की जगह 2, p2, x की जगह 2 लगाना है. It becomes 2 square minus 5 into 2 plus 6. It becomes 0. Yes, it is the 0 of the polynomial. Next, अब 3 लगा दीजिए. 3 square minus 5 into 3 plus 6. देखो ये भी 0 आ गया. It is also 0 of the polynomial. Next देखिए Q वाले में दोनों 0 आ गए. They are the zeros of the polynomial. और देखिए आर एक्स वाले में हमने 2 लगाया, 2 स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये बन गया 20. Oh, it is not a zero. So this is not the zero of the polynomial. Similarly, हमने 3 लगाया, it has become 30. No, it is not zero. It is not the polynomial. Zero of the polynomial. So to find the zeros of the polynomials, these are only numbers. If you put these numbers and the polynomial becomes zero, then it is called the zero of the polynomial. Now let us go further. Next note is how to identify whether the given algebraic expression is a polynomial. अब देखिए यहाँ पे algebraic expression दिए हुए हैं. Look here, 5x square minus 4x plus 3. यहाँ पे डिग्री देखिए 2 है, इसकी डिग्री 1 है, और यहाँ पे डिग्री नहीं है तो 0 होगी. x की पावर 0 लगा दो. x पर 0 कितना होता है? 1. तो डिग्रीज आर 2, 1 एंड 2. यहाँ पे डिग्री देखिए 3 है और -1 है. ओहो हो, डिग्री माइनस में नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिग्री इज ऑलवेज ए होल नंबर. डिग्री इज ऑलवेज ए होल नंबर. ये -1 नहीं चाहिए. सो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल. अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1. √2x प्लस 3. √2x प्लस 3. x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर नहीं है तो 0 होगी. तो 0 और 1, अरे यस, दीज आर होल नंबर्स. यहाँ पे x की पावर कितनी है? स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट कितनी होती है? पावर 1/2. तो ये x की पावर 1/2 -5. यहाँ पे x की पावर नहीं है, 0 होगी. सो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जो इनमें सबसे ज्यादा डिग्री हो. देखो यहाँ पे डिग्री 2 इज द मैक्सिमम, तो इट विल बी डिग्री 2. अब यहाँ पे देखिए नीचे एग्जांपल देख रखें. 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2. यहाँ पे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री कितनी है? 3. तो डिग्री विल बी 3. x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5 प्लस y स्क्वायर. यहाँ पे आप देखिए डिग्री 2 इज देयर. x की पावर 2 है, x की 1, y की 1 है. इन दोनों को ऐड कर देते हैं. जब दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं उनकी डिग्री को ऐड कर देते हैं. यहाँ y की पावर कितनी है? 2. सो डिग्री विल बी 2. नेक्स्ट x स्क्वायर y. x की पावर 2 है, y की पावर 1 है. 2 और 1 3. यहाँ पे देखो y स्क्वायर x, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है. डिग्री विल बी 3. ऐड कर दो. सो मैक्सिमम डिग्री इज 3. So it will be of degree 3. So डिग्री ऐसे मालूम करते हैं. अगर एक वेरिएबल है तो आपने देखना होता है मैक्सिमम कितना है. यहाँ पे जैसे मैक्सिमम था 2, 1, 0 में से 2 मैक्सिमम था. यहाँ पे 1 और 0 था तो 1 मैक्सिमम था. बाकी ये डिग्री ना तो माइनस में होती है, ना ही बटे में होती है, ना ही ये 1 से कम होती है. और ये जो है p/q शेप की नहीं होती है. They are only whole numbers, right? They are not decimal numbers. So degree is always a whole number. Now let us go further. Next note is how to find the zeros. Look here, we will find the zeros. Zeros पता करने हो factorization method से पता लगता है. Supposing this is the question, x square plus 8x plus 15. अब आप क्या कीजिए? 2 ब्रैकेट लिख दीजिए. x स्क्वायर के फैक्टर क्या है? x इंटू एक्स. एक x यहाँ लिखो, एक x यहाँ लिखो. अब लास्ट में आ जाओ 15. 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 and 3 और ऐड करो तो 8. सो ऐड कर दो तो 8 बन जाता है. सिमिलरली यहाँ से अगर इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -5 निकल आई, यहाँ पे x की वैल्यू -3 निकल आई. सो इन दिस केस द zeros are -5 and -3. Now let us go to next one.
इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 ब्रैकेट लगा दो। ये देखो 2 ब्रैकेट जब लगाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है उसके फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या बनेंगे, x और x बनेगा, एक x यहाँ लगा दो, एक x यहाँ लगा दो। अब लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 और 2। अब आपको 5 चाहिए माइनस का, तो 3 भी माइनस का होना चाहिए और 2 भी माइनस का होना चाहिए। अब ये क्योंकि 6 प्लस का है तो दोनों माइनस के होने चाहिए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, x विल बी 3, x माइनस 2 इज 0 है, x इज इक्वल टू 2। तो 3 and 2 विल बी दी जीरोस। नेक्स्ट देखो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24। अब x स्क्वायर के 2 फैक्टर बनेंगे, x एंड x। 24 के फैक्टर बनाओ, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 and 12, और 2 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 10। सो 10 ये जो है प्लस का साइन वाला है तो बड़े वाला साइन प्लस का होगा, और छोटे वाले का साइन माइनस में होगा। सो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 2, दीज आर द 2 फैक्टर्स। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 12 निकल आएगी, इक्वल टू 0 रखो, और यहाँ पे x माइनस 2 0 है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो जीरोस विल बी माइनस 12 and 2। अब देखिए आपको सम ऑफ द जीरोस निकालना पड़ता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना होता है। अब यहाँ पे जीरोस आई है -5 और -3, इनको ऐड करो, -8 आ गया। यहाँ पे जीरोस आई हैं 3 and 2, इनको ऐड करो, 5 आ गया। यहाँ पे जीरोस हैं 12 और 2, माइनस का 12 और 2, माइनस का 10 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट करेंगे, -5 और -3 की प्रोडक्ट होती है +15, 3 और 2 की प्रोडक्ट होती है 6, -12 और 2 की प्रोडक्ट होती है 24। सो we will be finding the sum of the zeros and product of the zeros. This we will be utilizing on the next page. Now look here. Find the relationship to verify. अब देखिए ये जो है रिलेशनशिप पता करना है, किस में पता करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a is the coefficient, b is the coefficient and c is the coefficient। अगर हम ये वाली पॉलिनोमियल लेते हैं, a will be 1, b will be -5, c will be 6। Look here, a will be 1, this is 1, b will be -5 and c will be 6। अब यहां से आप सम ऑफ द जीरोस निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो। वो होता है -b/a। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a। यहाँ पे अपने पास b लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। -b/a माइनस b कितना है, -5, a कितना है, 1, इट विल बिकम 5। c/a, c कितना है, 6, a कितना है, 1, इट विल बी 6/1। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो यहां से हम जीरोस निकालेंगे, क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके। देखो एक्स स्क्वायर, एक x यहां लिख दो, एक x दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। 6 के फैक्टर बनाओ लास्ट में जाके, 3 and 2। अब आपको 5 माइनस का चाहिए, 3 भी माइनस का होना चाहिए, 2 भी माइनस का होना चाहिए, और 6 क्या चाहिए, प्लस का। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 आ जाएगा। सो सम ऑफ द जीरोस यहां से भी पता लग गया, यहां से भी पता लग गया। अब आप देखो यहां पे कितना है, सम ऑफ द जीरोस आया है आपका 5, और इधर से भी सम ऑफ द जीरोस आ गया 5। हमारी जीरो निकली है 3 and 2। लुक हियर, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x विल बी 3, x माइनस 2 इज 0, x विल बी 2।